یہ وہی جگہ ہے جسے دنیا کے تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت اپنی اپنی مانیتاؤں میں مقدس مانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ جگہ اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں یہ دنیا کے سب سے ووادت مگر سب سے پوتر استھانوں میں سے ایک ہے؟ اور یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے جس کے نام پر صدیوں سے اس زمین پر اتنا کچھ ہوتا آ رہا ہے؟ چلیے آج کی اس روحانی اور ایتہاسک سفر میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، قرآن اور اتہاس کے حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہیں بادشاہت بھی دی گئی اور علم بھی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بادشاہت اور نبوت دونوں کا تاج ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دیا تو یہ ایک نئی داستان کی شروعات تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکمت دی تھی جو کسی اور کے پاس نہ تھی۔ وہ ہواؤں کو اپنے قابو میں کرتے، پرندوں کی زبان سمجھتے اور جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ اے سلیمان، میری عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ، ایسا مقام جہاں میرا نام پکارا جائے، جہاں لوگ امن اور سکون پائیں۔ تب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اس زمین پر تعمیر شروع کی جو بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ عمارت صرف پتھروں کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ ایمان، علم اور انصاف کی نشانی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ اس تعمیر میں مدد کریں۔ دن رات جنات اور انسان مل کر اس مقدس گھر کو بناتے رہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام جنات کو کام دیتے تو وہ ان سے کہتے کہ جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور یوں ہی سالوں تک تعمیر چلتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کے اندر سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجاوٹ کی گئی تھی، اور یہ پوری طرح عبادت کے لیے سمرپت تھا۔ جب یہ مکمل ہوا تو اس کی رونق ایسی تھی کہ روشنی اس کے چاروں اور پھیل گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا، ایک پوتر صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسباب یعنی ان کی تختیاں، ان کا لاٹھی اور کچھ نشانیاں رکھی گئی تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے دعائیں قبول ہوتی اور جہاں سلیمان علیہ السلام اللہ سے سیدھے بات کرتے۔ مگر وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں گھومتا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وقت پورا ہوا تو کہا جاتا ہے کہ وہ جنات کی نگرانی میں کھڑے کھڑے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنات کو تب تک معلوم نہیں ہوا جب تک ان کی لاٹھی نہ ٹوٹ گئی اور ان کا جسم زمین پر نہ گرا، اور جب یہ بات کھلی تو سب کو احساس ہوا کہ اللہ ہی اصلی طاقت والا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہی ہیکل کئی بار اجڑا، تباہ ہوا۔ بابل کا بادشاہ بخت نظر آیا، اس نے یروشلم کو جلا ڈالا اور ہیکل سلیمانی کو بھی۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بعد میں دوسرا ہیکل بنایا، لیکن وہ بھی رومن فوجوں نے تباہ کر دیا۔ یوں ہی صدیوں تک یہ مقدس جگہ تباہی اور تعمیر کے دوروں سے گزرتی رہی۔ پھر جب اسلام کی روشنی پھیلی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یروشلم فتح ہوا تو انہوں نے اس جگہ کو صاف کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو پورا علاقہ کوڑے، کچرے اور پتھروں سے بھرا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہیں مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ مسجد آج مسجد الاقصی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات آسمانوں کی سیر کی تھی۔ مسلمانوں نے تقریباً 17 مہینے تک اسی طرف یعنی مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا، لیکن مسجد الاقصی کی مقدسیت ہمیشہ برقرار رہی۔ آج یہ جگہ مسلمانوں کے لیے وہی عزت رکھتی ہے جو پہلی بار رکھی گئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ جب سیاسی حالات بدلے تو اس مقدس جگہ پر دنیا کی سیاست نے بھی اثر ڈالنا شروع کیا۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا اور 1967 کی جنگ کے بعد یروشلم پر اس کا قبضہ ہوا تو مسجد الاقصی کا علاقہ یعنی حرم شریف انترراشٹریہ سیاست کا سب سے نازک مدعا بن گیا۔ جارڈن کے وقف بورڈ کو دھارمک دیکھ ریکھ کا ادھیکار ملا، مگر سرکشا کا نینترن اسرائیل کے ہاتھ میں رہا، اور یہیں سے شروع ہوا ایک ایسا سلسلہ جس میں ہر سال کبھی بندشیں، کبھی اجازتیں، کبھی ٹکراو اور کبھی صلح کی کوششیں ہوتی رہیں۔
कुछ यहूदी धार्मिक संस्थाएं इस बात में यकीन रखती हैं कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वही उनकी धार्मिक पहचान का केंद्र है। दूसरी ओर मुसलमानों का ईमान है कि यह इलाका मस्जिद अल अक्सा का हिस्सा है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यह अल्लाह का घर है। दोनों पक्ष अपनी अपनी आस्था के साथ खड़े हैं और दुनिया की सियासत इस बीच में एक धागे की तरह उलझी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद एक बात साफ है, मस्जिद अल अक्सा की मिट्टी में वो रूह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आज भी वहां के बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान इस मस्जिद की हिफाजत के लिए रातों को वहीं सोते हैं और हर दिन दुआ करते हैं कि अल्लाह इस घर की रखवाली करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सिखाती है कि इल्म, ईमान और इंसाफ हमेशा ताकत से बड़ा होता है। उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत में न्याय को प्राथमिकता दी। रिवायत है कि एक बार दो औरतें उनके पास आईं और वे एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम दोनों का दावा है तो हम बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये सुनते ही एक औरत चिल्लाई, नहीं, उसे दूसरी औरत को दे दो, बस उसे नुकसान न पहुंचाना। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, यही उस बच्चे की असली माँ है। यही उनका इंसाफ था जो आज तक मिसाल बना हुआ है। ऐसे ही किस्से हमें बताते हैं कि उनका मकसद सिर्फ इमारतें बनाना नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई की दीवारें खड़ी करना था। दोस्तों, जब हम मस्जिद अल अक्सा और हैकल सुलेमानी का जिक्र करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये ज़मीन सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि रहमत और बरकत की ज़मीन है। यहाँ हर रिवायत में कुछ सीख है, हर दुआ में एक पैगाम है। आज जब पूरी दुनिया इस मुक़द्दस जगह को लेकर बहस करती है तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जगह हमें तकरार नहीं, बल्कि तौहीद, एकता और अमन का सबक देती है। और अगर हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद करें, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मुझसे पहले किसी को ना मिली हो और मुझसे बाद में किसी को ना मिले, तो हमें एहसास होता है कि असली ताकत इमारत में नहीं, बल्कि नेक नीयत में होती है। आज भी जब हम मस्जिद अल अक्सा की तस्वीरें देखते हैं, जब वहाँ की आवाज़ें सुनते हैं, तो दिल रो पड़ता है। वहाँ के बच्चे जो पत्थरों से अपने हक़ की हिफाजत करते हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे की याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुक़द्दस जगह की हिफाजत करे, वहाँ अमन कायम रखे और हमें इस इतिहास को समझने, बताने और आगे पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज तक किसी यहूदी ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? दोस्तों, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, लेकिन इस बदलती दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबका ध्यान खींच रही है, और वो है इस्लाम का तेज़ी के साथ फैलना। इस्लाम जो कभी सिर्फ मुसलमानों तक सीमित समझा जाता था, आज हर ज़बान, हर नस्ल, हर मुल्क, हर कौम के लोग इसे अपना रहे हैं। कोई दिल की सुकून के लिए मुसलमान हो रहा है, कोई अक्ल की दलीलों से कायल हो रहा है, और कोई इंसाफ और अमन की तलाश में इस्लाम को अपना रहा है। और आज इंटरनेशनल इदारे खुद मान रहे हैं कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब है। ईसाई देशों के लोग जो कभी इस्लाम के सख्त खिलाफ समझे जाते थे, आज सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। बल्कि जो लोग किसी मजहब को नहीं मानते, यानी एथीइस्ट हैं, वो भी बड़ी तादाद में मजहब इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हिंदू मजहब, बुद्ध मजहब और दूसरे मजहब के मानने वाले भी अलग अलग तरीक़ों से अपने मजहब को फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहूदियत की फितरत इसके उलट है। यहूदियत एक गैर दावती मजहब है। ये लोग आम तौर पर किसी को अपना मजहब अपनाने की दावत नहीं देते, ना ही इसकी हौसला अफजाई करते हैं। इनके यहाँ मजहब एक विरासत की चीज़ है, कोई खुला पैगाम नहीं जो दुनिया को दिया जाए। दोस्तों, यहूदियों के इस्लाम से दूर रहने की एक बड़ी वजह उनका घमंड और एहसास बड़ाई है। ये अपने आप को बाकी तमाम इंसानों से बेहतर, साफ और चुना हुआ समझते हैं। इनका यकीन है कि अल्लाह ने सिर्फ उन्हें चुना है। बाकी कौमें, चाहे वो मुसलमान हों, ईसाई हों, हिंदू हों या कोई और, उनके नज़दीक कुछ भी नहीं। बल्कि सच ये है कि ये हमें इंसान ही नहीं समझते, बल्कि ये तो यहाँ तक कहते हैं कि गैर यहूदी लोग जानवरों जैसे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, गंदे और नापाक हैं। यानी इनके नज़दीक एक यहूदी की जान, इज्जत और माल तो कीमती है, लेकिन बाकी इंसानों की कोई कीमत नहीं।
ये अपने आप को इतना पाक, इतना साफ समझते हैं कि बाकी सबको वो अपने जूते के बराबर भी नहीं मानते। जब कोई कौम अपने अलावा सबको घटिया और कमीना समझे तो जाहिर है वो कभी भी दूसरे से सीखने या किसी और दीन की तरफ झुकने को अपनी बेइज्जती समझती है। यही वो दूसरी बड़ी वजह है जो इन्हें इस्लाम की सच्चाई मानने से रोकता है। तारीख गवाह है कि यहूदी कौम हमेशा जहां भी गई वहां के लोगों के लिए मसला बनी। इनकी चालाकियां, पैसों के हथकंडे और साजिशी सोच अक्सर उन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुई जिनके बीच वो रहे। यही वजह है कि अलग अलग दौर में इन्हें अलग अलग इलाकों से निकाला गया और कई बार इन पर जुल्म भी हुआ, चाहे वो यूरोप हो, स्पेन हो या जर्मनी। हिटलर के दौर में तो लाखों यहूदी मारे गए, वो भी इस बुनियाद पर कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था और समाज को चुपके से कंट्रोल कर रहे थे। इन सब तजुर्बों ने यहूदियों को एक नतीजे पर पहुंचाया, अगर जिंदा रहना है तो अपना फैमिली सिस्टम मजबूत करो और एक अलग मुल्क बनाओ। इसी सोच के तहत इन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा किया और इजराइल के नाम से एक यहूदी मुल्क बनाया। फिर दुनिया भर के यहूदियों से कहा, अगर तुम यहूदी हो और अपनी नस्ल और मजहबी पहचान साबित कर सकते हो तो आओ, इजराइल तुम्हें खुले बाजुओं से खुशामदीद कहेगा, शहरी हक तुम्हारे होंगे। लेकिन वहीं इजराइल में रहने वाले यहूदियों को एक और पैगाम दिया गया, अगर तुमने अपना मजहब छोड़ा, खास तौर पर इस्लाम अपनाया, तो सब कुछ छीन जाएगा। ना सिर्फ शहरी हक बल्कि खानदान, रिश्ते, समाज सब तुमसे किनारा कर लेंगे। और यही वो डर है जो उन्हें रोक देता है, यही वो धमकी है जो इनके कदम रोक देती है, यही वो दबाव है जिसकी वजह से वो सच्चाई की तरफ बढ़ नहीं पाते। और यहाँ अगर हम गौर करें तो यहूदी मजहब में भी कई ऐसी बातें हैं जो इस्लाम में मौजूद हैं, जैसे कि यहूदी लोग भी रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं। यहूदी सूअर का गोश्त भी हराम समझते हैं, जिना को गलत कहते हैं और शराब को नाजायज़ मानते हैं। शुरू में जब यहूदी मजहब आया था तो ये सारी बातें दीन का हिस्सा थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ यहूदी आलिमों ने इन बातों को बदलना शुरू कर दिया। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की थीं उन्होंने अपनी मर्जी से उनको हलाल कर लिया। रोज़े इबादत के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने रोज़ों को सिर्फ एक रस्म बना दिया। मजहब यहूदियत में सदका और खैरात भी अब सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए होता है। शराब और जिना जैसे गुनाह पर सख्ती होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ आम होते जा रहे हैं। लेकिन मजहब इस्लाम में अल्लाह के हुक्म जैसे उतरे थे वैसे ही महफूज हैं। लेकिन यहूदियों ने अपने दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदल कर रख दिया। उन्होंने दीन को अल्लाह का पैगाम नहीं बल्कि अपनी सोच और फ़ायदे के हिसाब से ढाल लिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे कोई अपने सगे बेटे को पहचानता है। उनके पास तो आखिरी निशानियां मौजूद थीं, इसलिए वो मदीना में आकर बस गए ताकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ तो फ़ौरन ईमान ले आएँ। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आ गए तो उनका दिल ईमान की बजाय जलन और घमंड से भर गया। उन्हें यह मंजूर ना हुआ कि आखिरी नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आएँ, और यही ज़िद्दी दर्जादाती अकड़ उनके लिए सच्चाई को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। पुराने ज़माने में यहूदियों की मजहबी किताब तौरात हर शख्स को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त सिर्फ यहूदी आलिम ही वो लोग थे जिनके पास तौरात थी, और वही लोगों को दीन के हुक्म बताते थे। लोग उन्हें नबियों जैसा दर्जा देते थे क्योंकि वही बताते थे कि क्या हलाल है और क्या हराम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हीं आलिमों ने दीन के हुक्मों में चोरी छुपे बदलाव करना शुरू कर दिए। सूद जो कि सख्ती से मना था उसे हलाल कह दिया। जिना के रास्ते बंद करने की बजाय ऐसे फतवे देने लगे कि रास्ते खुल गए। जादू जो कि बड़ा गुनाह है उसे भी आम कर दिया। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को दुनिया के चंद पैसों के लालच में बेचना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उनके असली दीन में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गईं कि असली दीन कहीं पीछे रह गया और खुद से बनाया हुआ दीन आगे आ गया। दोस्तों, यही वो सारी वजहें हैं जिनकी वजह से आज भी यहूदी दुनिया भर में सबसे कम तादाद में इस्लाम अपनाते हैं। नस्ली अकड़, खुद को बेहतर समझना, दीन में बदलाव और अपने आलिमों पर अंधा भरोसा, ये सब उन्हें सच्चाई के रास्ते से दूर रखे हुए हैं। लेकिन सब यहूदियों ने अंधी नकल नहीं की। यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदियों के सबसे बड़े आलिमों में से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम भी हैं, जिन्हें उनका पूरा कबीला नेक, सच्चा और दीन का माहिर मानता था। उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कुरान की आयतें सुनी तो फ़ौरन पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनकी निशानियां तौरात में लिखी हुई थीं। उन्होंने किसी डर, किसी अकड़ या ज़िद के बगैर सच्चाई को अपनाया और ईमान ले आए। काश बाकी लोग भी इसी तरह ज़िद और नफ़रत छोड़कर हक़ को पहचानें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सच्चाई को समझने और उस पर